particular ISO file size is for 5.26 GB. already share in the first class. When I convert MDR to GPT, then I just choose it and then click on OK. That is the final process to create a virtual machine, and this is the Saba virtual machine. Then I go power on this virtual machine. I just left click. When I left click, cursor is not visible. Press any key to boot. So I just response to the virtual machine. If you not response, then you are visible the EFI network, because I already choose the EVFI. EVFI must Yes, sir. need the response. Clear? जिसका कल एब्सेंट था एक बार डोमेन रिपीट करा देता हूँ, देख लो, क्योंकि हम लोग जब FTP को शेयर करेंगे उसमें डोमेन चाहिए. Without domain we cannot configuring the FTP. Without domain we cannot configuring the RDP server also. So that's why Barago we must need to choose your English India here. Then Barago click on next, install now. Install. यहाँ पे 4 ऑप्शन हो रहे, मेरे को कौन सा वाला का चूज करना है? व्हिच ऑप्शन आई चूज? लास्ट वाला Last Windows Server 2019 data center evaluation. फोर्थ नंबर सर सेलेक्ट करेंगे सब. 4 में से कौन सा चूज करेंगे? 1 2 3 4 कौन सा? Desktop experience. Desktop experience. चार नंबर. Last data center desktop. 4 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर? 4 नंबर सर. 4 number sir. Fourth number. 2019 यार मैं इसको इधर कर सकता हूँ सर. मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया ना, प्रूफ दिखा रहे हो सब लोग. ये वाला भेजा था ये वाला. Desktop experience. हाँ सर. तो 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर क्यों कर रहे हो? तो मेरे को कहाँ पे जाना? लास्ट में जाना. क्लियर? विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन डेस्कटॉप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. I accept the license term, then click on next. Custom. Second number custom. Then where you go? Custom install list. Custom Windows only advanced. I just click on custom, then I just convert MBR to GPT. Drive. First I go to disk part. Disk part. List 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 is select after disk list zero. this is present on MBR Disk or 0. GPT. Present on MBR or GPT. Select MBR, so I ये सर just MBR में है, select कन्वर्ट this करना है to GPT में. clean. Then where I go? Clean. Clean. Then where I go? Convert Convert GPT. GPT. Asterisk आएगा. Yes sir, disk is very good. Yes sir. Clear everyone? Yes sir. Yes sir. Then exit from this part. Disk part. Again exit from CMD. Clear? Yes sir. ये वाला किया था ना फर्स्ट दिन में? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? एग्जिट करना है. एग्जिट करने के बाद Next. मैंने कमेंट सब लोगों को भेज दिया, मिला है? Yes sir. Yes sir. मिल गया. I just click on home. Now I'm installing Windows 10 operating system. So where I go, click on typical, then click on next. I just click on middle option. I just choose your Windows 10 operating system. Windows 10, choose Windows 10. Click on next. Windows 10, which option I choose? Windows 10 Pro. Pro. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro.
विंडोज 10 प्रो इसको करेंगे 1, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन यस। ये मेरा कौन सा विंडोज 10 इंस्टॉल किया? विंडोज 10 कंप्यूटर Pro 1 को हम करेंगे लाइक Pro. 1 कंप्यूटर Computer 1. कंप्यूटर 1 अंडरस्कोर विंडोज 10 प्रो, इसको मेरा क्लाइंट करो, क्लिक ऑन ब्राउज दिस पीसी, डी D ड्राइव, drive. E VMware, create a fresh folder, computer 1 Windows 10 Pro, then click on OK. Pro Then click on OK again. Everyone clear? next Yes, sir. Next, Clear. Next. next single 20 file, 20 GB, then 20. click 2 GB RAM, Custom customize customize hardware. hardware डिस्प्ले को करेंगे 3D को, स्टेज stage मोड फ्री स्टेज, free automatically stage adjust user interface size in the off virtual machine. Click on unchecked close, close click on Click and finish. yes finish. Everyone clear? Please next confirm. Clear. Then I go to Yes, yes sir. sir. Go to next. यहाँ पे भी सेम करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करने की, अदरवाइज क्लिक फाइल नेटवर्क। Same as here also, click on create a new virtual machine, click on typical, click on next. What operating system choose here? Windows Windows 7. 7 है, Windows 7 Pro 7 Pro. and professional, then click on next. आज downloading Windows है. 7, what version I choose here? Windows 7 Professional. Windows 7 professional pro 3 नंबर, इसको करेंगे 2, then click on next, 2 click on yes. ये yes मेरा Windows 7 कौन सा वर्सन है? pro है Professional. Windows 7 Pro. This is my computer. 2. 2 Yeah, Yes, sir. click on Yes, browse sir. this PC, D D D drive. drive, VMware, VMware. create a place folder, new folder computer to Windows 7 Pro, then click on Click on OK here, OK. then click on next. Store virtually as a single file, 20 20 GB record, then click on next. What GB RAM assigned customize here? hardware Dis 2 GB display. RAM. डिस्प्ले को करेंगे 3D को, स्टेज मोड फ्री, free stage automatically adjust user interface size in the virtual machine. Click on close, click on finish. समझ में आ रहा था? ये नहीं आ रहा था? Yes. Yes, sir. Clear. हार्ड लोगे तो हार्ड लगेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो इजी होगा। कल किसने sir. प्रैक्टिस किया है? वो आर ऑलरेडी डन द प्रैक्टिकल, डोमेन प्रैक्टिकल। Yes, प्लीज sir. रेज मैंने योर किया। हैंड। मैंने किया Yeah, सर। Raise hand. समझ में आया? Yes, sir. सर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है सर। तो चलो हम लोग और एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो मेरे को और एक करना है, रिमोट मैनेजमेंट। रिमोट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? रिमोट किसके लिए यूज होता है? व्हाट इज यूज फॉर रिमोट? किसी और के सिस्टम को अपने सिस्टम से यूज को करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए। मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। The Windows Remote Desktop Tools gives user ability to connect to a remote Windows PC or server over the internet or on a local net. ये जो रिमोट डेस्कटॉप टूल्स है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? गिविंग देम फुल एक्सेस टू द टूल्स। full कोई access भी यूजर को एक्सेस करने के लिए क्या बोले? Connection tools gives user ability to connect to a remote Windows PC or server over the internet or on a local. internet लोकल नेटवर्क में तुम लोगों ने कभी देखा है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काम किया है? कोई भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई, जो एनीडेस्क, टीमीबार, एडमिन, वो लोकल लैन में काम किया है कभी? नहीं। दे आर हाँ ओनली सर। वर्किंग ऑन द इंटरनेट। बट ये लोकल नेटवर्क के लिए कौन है? लोकल नेटवर्क के लिए विंडोज रिमोट डेस्कटॉप। ये जो विंडोज रिमोट डेस्कटॉप है, ये लोकल नेटवर्क में काम करता है। और इंटरनेट में कब काम करता है? जब तुम्हारा कोई वर्चुअल मशीन को रिमोटली कनेक्ट करना है, एजूर हो, एडब्ल्यूएस हो। क्योंकि ये रिमोट टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्चुअल मशीन के लिए। गिविंग देम फुल एक्सेस टू द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर। हम लोग ये
टूल्स को क्यों लेते हैं, हम लोग ये रिमोट को क्यों लेते हैं? फुल एक्सेस, गिविंग देम फुल एक्सेस टू द टूल्स, टूल्स को फुल एक्सेस देने के लिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है किसको? रिमोट को। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज मेड पॉसिबल बाय माइक्रोसॉफ्ट ओन रिमोट डेस्कटॉप। ये किसके लिए यूज हो रहा है? दैट इज यूज फॉर द रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। Remote desktop protocol. आरडीपी। तुम लोग आरडीपी को थोड़ा रीड करो, तुम लोग आरडीपी को रीड करो। A Windows The remote remote desktop. desktop. पढ़ो शांतनु पढ़ो। A Windows remote desktop connection tools gives user the ability to connect to a remote Windows PC or server over the internet or on a local network, giving them full access to the tools and software installed on it. This is made possible by Microsoft रीडिंग on remote रीडिंग desktop. रीडिंग पढ़ने से समझ में नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक लाइन को समझो, सब समझने का कोशिश। The remote desktop allow remote user to see and use on a device in another room. मान लो कोई डेस्कटॉप बैंगलोर में है, कोई डेस्कटॉप कोलकाता में है, किसके द्वारा कंट्रोल करोगे? दैट ओनली पॉसिबल थ्रू द रिमोट। की पेरिफेरल लाइक और कीबोर्ड एंड माउस आर शेयर्ड विद रिमोट कंट्रोल। की पेरिफेरल मतलब क्या? कीबोर्ड एंड माउस, जो रिमोट ले रहा है उसका कीबोर्ड एंड माउस किसके साथ शेयर है? क्लाइंट के साथ शेयर। Client के साथ है। जैसे मान लो मैं पिंटू कंप्यूटर को कंट्रोल करो, तो पिंटू कौन है? क्लाइंट है। और मैं कौन हूँ? सर्वर हूँ। तो मेरा आईडी आरटीबी सर्वर की तरह काम कर रहा है। तो मेरा कीबोर्ड एंड माउस पिंटू के साथ शेयर है। क्यों? क्योंकि पिंटू फेसिंग द प्रॉब्लम, and when Pinto facing the problem, when I controlling the Pinto's computer, Pinto is a client. Yes, sir. Pinto location different, my location is also different. But we are how connected? We are all logically over the internet. Key peripheral like or keyboard and mouse are shared with remote machine. For RTP connection to work, you need two components. One is RTP server, another is RTP client. देखो, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, RTP server disconnected, then you are all not visible my screen. And when I share my screen, you are all enable my screen, you are all visible my screen. When when RDP server and RDP client both are enabled, then if anyone got disconnected, for example, I just disconnected with the one student, for example, I disconnected to Kumar Saurabh. So Kumar not visible my screen, 2 seconds. Kumar clear? Kumar visible? Now, Yes, sir. Yes. because when I disconnected, then Kumar not see my screen. Why? Because Kumar treated as RDP client and I am treated as RDP server. When RDP server to the RDP client, then RDP client must be controlled with the server. If I remove Saurabh, then Saurabh not visible my screen. So when RDP server and RDP client both are present on the same network, then the remote connectivity, the RDP connectivity. Everyone clear? Yes, A sir. typical RDP server is the Windows PC or server. ये एक पीसी भी हो सकता है और एक सर्वर भी हो सकता है. You are connecting to and will control. जहां से कनेक्ट करते हैं और कंट्रोल कर. Connecting to and will control. And client कौन है? Client is a PC or mobile device where RDP client have installed from which will control the server.
आरडीबी क्लाइंट क्या होता है? आरडीबी क्लाइंट एक पीसी भी हो सकता है और एक मोबाइल डिवाइस PC भी हो और सकता रिमोट फोन भी हो है, सकता है लेकिन मोबाइल फोन। सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। यू मस्ट नीड टू यूज द सेम एप्लीकेशन। Raman Kumar also Zoom, Rahul also Zoom, Pintu also Zoom, Rahul also Zoom, Kumar Saurabh also Zoom, Rahul also Zoom, Santanu Kumar also using Zoom, I am also using Zoom. Clear? Yes, sir. From which you will control the server. You are all visible my screen. Yes, sir. Clear everyone? What is remote? Yes, sir. And this is very important. RDB port number is 3389. 3389 is a port number. So maybe theory, everyone clear? Yes, sir. Now my server is Yes, ready, sir. client is also going to ready, and this client also ready. I just right now configuring from server. पहले हम लोग एक एक करके configure करेंगे. First I configuring the server, then I configuring the computer one, then I configuring the computer. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, Okay. so first of all I opening the Zoom. क्या नाम है उसका? Domain practical steps. Because here all steps are discussed briefly. So first of all, what I do, first of all, I activate the administrator account with the password, which is abcd@1234. That is my administrator of server password. So what is the password? I enter abcd@1234. abcd@1234. 1, 2, 3, 4. Everyone clear? Finished. Yes, sir. ये मैंने कौन सा पासवर्ड दिया? एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम, पासवर्ड इज abcd@1234. Where I go? 1, 2, 3, 4. If you do this, is it possible to unlock? No. So how to unlock? You just only uncheck here. You just only check on send controller Lily to this virtual machine. So now administrator is there. Administrator password is 1, 2, 3. abcd@1234. 1, 2, 3. 1 2 3 4 4. भूलना मत. Then what is the next step? Next step I just changing the server name. How to change the server name? First you go to run and type sysdm.cpl, enter the name, HTML.cpl. then restart the server. So what is the command? sysdm.cpl. तो मेरे को कहाँ पे जाना है? Go to run में जाना है, run में जाके टाइप करना है HTML.cpl. sysdm.cpl. TB98CSMCL86 not possible to remember. So that's why I just change it to server 1. हम लोग यहाँ पे किसको चेंज करेंगे? server 1 को चेंज. Computer name is the server 1. Then click on OK. And where it is present? It's present on Baku. What is the next step? Next step I just changing the IP addresses. What IP assigned? 192.160.1.1, 255, 255, 255.0. Gateway not required. DNS is 1.1. Then you can just enter this. Then okay, close. So right now where I go, I just click on. बाद में हम restart करते हैं. First I just changing the IP. How to change the IP? Go to LCPA.cpl. double click on Ethernet 0, then click on properties, then click on Internet Protocol version 4. Use the following IP address, which IP is here: 192.168.1.1, 255.255.255.0. Gateway not required. DNS is 192.168.1.1. Click on OK. Click on OK. Click on close. Click on close. अभी मेरे को क्या करना है? फायरवॉल को ऑफ करना है. I just turn off the Windows Defender firewall. Everyone clear? Please confirm Yes, sir. with voice. Please reply. Yes, Then I sir. go to that. Yes, sir. Yes, So sir. how Clear. where I go? I just go to firewall firewall.cpl. Then where I go? Turn Windows Defender firewall on or off. Turn off Windows Defender firewall. Turn off firewall. Then Okay. everyone clear up to now? I already deactivated the firewall settings. Now where I go? Activated the ADDS role. Active ADS role. Now activated the ADDS role. So where I go? First I need to restart now. क्योंकि एक बार हम restart करेंगे. क्योंकि एक बार host name change किया उसके बाद restart जरूरी है.
सर आपका पढ़ के भी आदमी कर सकता है कुछ। हाँ हाँ, सर आपका खुद से स्टडी करके भी आदमी खुद से कर सकता है नोट्स पढ़ के। मेरा नेट नोट्स ऐसे ही तो कॉन्फ़िगर है। तुम मतलब यहाँ पे भी प्रैक्टिकल, मान लो लैपटॉप नहीं है, तुमने प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो तुम्हारा कंपनी में जाकर तुम सेम स्क्रीनशॉट को ओपन करोगे तो इजीली प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो इतना सर एक हम काम 100% गारंटी के साथ कर सकते सर नोट्स में डाल दीजिएगा ना सर, लास्ट में नोट्स में। हैं। मैंने तो एवरीडे नोट शेयर करता हूँ भाई, ताकि कोई किसी सर का वो प्रॉब्लम ना हो। सर वो देते हैं लेकिन सर वो थोड़ा हो जाता है, एक आपका नोट्स में सेव एडमिशन कर इज दीजिए। यूजर नेम पासवर्ड इज abcd@1 2 3 एमपीसीडी 4 डायरेक्ट 1 2 3 4। 3 4। हाँ सर 1 1 2 3। Then whatever, just go to run and type here server manager. एंड Then देन click on रिफ्रेश। OK. This is the shortcut way to open the same. मैनेजर। So where I go, I just click on add rule and features. I just assign ऐड रोल here एंड फीचर्स। add rule and features. The administrator account has a strong password. Administrator is username, password is abcd@1 2 3 4. Network settings suggest static IP configure 192.168.1.1. Then where I go, click on next. Next. Then where I go, role based or feature based installation. Then click on next. Next. Select a server from the server pool. Server 192.168.1.1. Click Microsoft on Server next. 2019 Data Center Revolution. Then click on next. Then where I go, I just click on Active Directory Domain Service. I just check on Active Directory Domain Service. Click on Add ऐड Features. फीचर्स। ये सारे चीज एकदम बराबर लिखा है, देखो यस सर। क्लियर। Check on Active Directory Domain Service. Then where I go, add features. Click on next, click on next, click on next, click on एंड install. इंस्टॉल कितना बार नेक्स्ट है? 3 बार नेक्स्ट है। तो चलो हम लोग 3 बार नेक्स्ट करते हैं। 1 बार नेक्स्ट, 2 बार नेक्स्ट, 3 बार नेक्स्ट, 4 बार में इंस्टॉल। देखो है, 3 बार नेक्स्ट के बाद यस सर। इंस्टॉल। यस सर। उसके बाद भी बोलोगे सर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, तो एक्सट्रीमली 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 सॉरी। और इससे अच्छा मेरा तो आइडिया तो है ही नहीं, मतलब और कैसे पढ़ाना है। नहीं सर, ये सर कोई भी कर लेगा सर। Then where I go, I just configuring the domain after activating the ADDS. ADDS एक्टिवेट करने के बाद क्या करना है, हम लोग डोमेन को कॉन्फ़िगर करें। सर गो समझ टू में द आ रहा है? नोट। इजी लग रहा है? यस सर, गो टू द सर नोटिफिकेशन। गो टू द नोटिफिकेशन। अभी अभी चला जाओगे क्या? अभी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं सर, अभी नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं मिलेगा, जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा ना तब तक नहीं इंस्टॉल होगा सर। होगा। एकदम लास्ट तक जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा एरर आएगा, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन का। एक रह आता है सर। देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड इंस्टॉल सक्सेस ऑन सर्वर 1। Then where I go, promote this server to a domain controller. I just click on promote this server to a domain controller. Then where I go, I just click on add a new project. What is the forest name? I just enter here revision.com. revision.com revision.com. सर ये वाला step एक बार और बता। पासवर्ड। जो आगे बढ़ कैंसिल गया। कर दो, यस कर दो, क्लोज कर दो, रिफ्रेश कर दो। अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? ये मेरा Add ही rule and मिस्टेक, feature. मैं ऊपर स्क्रीनशॉट देना भूल गया, स्क्रीनशॉट दिखाना भूल गया, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। गो टू नोटिफिकेशन, गो टू नोटिफिकेशन।
click on promote this server to a domain controller. Click on promote this server to a domain controller. Active Directory domain service Directory open service configuration configuration. wizard. देखो सेम आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड. Yes, sir. Then where go Select the select the deployment. deployment operation. Check Select on the add a new deployment. operation. I Select the just click on deployment operation. select the deployment operation. Click on add a new operation. Then Yes, where sir. I go enter the domain name Division. Division.com. click on next. Next. Type the directory service restore mode password abcd at the 1 2 3 4. Click on next. और तीन Click बार on next. Click चार बार on next next. करना है सर. Click on Okay, next. okay. Click on Next one. next. And then Install. Any question? Please reply. No, sir. No, sir. पूरा एकदम मतलब बराबर लिखा है. यहाँ पे क्या देंगे? pbis7.com. Then click on next. फिर से नेक्स्ट सर. Then बरेगा ये जो DNS देखो रेडी हो रहा है. डोमेन नेम सिस्टम रेडी हो रहा है. DNS सर्वर. यहाँ पे टाइप द डायरेक्टरी सर्वर डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड. ये कौन सा पासवर्ड देना है? सर्वर क्यों सेम पासवर्ड देना है? इसीलिए सेम पासवर्ड देना है. मैं नहीं बोल रहा, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है. तो माइक्रोसॉफ्ट का रूल्स पढ़ लो. एडमिन हम न्यू डोमेन vision.com बनाएंगे तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है जिसका पासवर्ड abcd@123 है वो हो जाएगा डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर? Yes, sir. पासवर्ड इज abcd@123. 1, 2, 3, 4. ABCD@123. देन बरेगो क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन बरेगो फिर से क्लिक ऑन नेक्स्ट. फिर से नेक्स्ट. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. एक बार और नेक्स्ट होगा दे दी तो. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड लास्ट में And होगा then install. Install. all previous site check successfully. Click install to begin installation. Then click on install here. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई हार्ड लग रहा है? No, sir. Yes, sir. No, sir. हेलो सर. हम्म. सर मैं जब सिस्टम पे काम कर रहा हूँ ना सर इसमें तो वर्चुअल मशीन में काम कर रहा हूँ ना दूसरा सिस्टम इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं जूम कर जा रहा है बार बार. क्या हो जा रहा है? जब मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ तो जूम कर जाता है बार बार. जूम कट जाता है. प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करता हूँ और जब रोक देता हूँ तो चलता है सही. नेट इश्यू से होता है सर. गुरुजी नेट तो अभी मतलब मोबाइल में सही चल रहा है सिस्टम में एक दिक्कत आ रहा है. काम करो. जो तुम्हारा कंप्यूटर में जो स्लो वाला SSD हार्ड डिस्क है ना हार्ड उसको डिस्क हटा नहीं दो. सर SSD है. SSD रैम कितना है? 2 GB. हाँ सॉरी 8 GB. हाँ 8 GB. सही में SSD हार्ड डिस्क नहीं है या Course, sir. ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा. The server was successfully configured as a domain controller. और लास्ट स्टेप में क्या है? लास्ट स्टेप में मेरे को यूजर क्रिएट करना है. What I do, I just log on with administrator and then created the user. So where I go and created user, go to dsa.msc. dsa.msc. Clear?
ये तो सबको भेज दिया था ना। यस सर। Yes, Yes. Aditya. अभी स्क्रीनशॉट भेज दूं? बाद में भेज बाद में भेज बाद में। तो अभी मेरे को क्या करना है, सर्वर को रेडी करना है, तो सर्वर रेडी होने दो, तब तक हम कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 को थोड़ा रेडी करो, ठीक है। तो Yes, sir. पहला काम क्या है, दोनों कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर को एनेबल करना है। एवरीवन क्लियर? क्लियर तो हो, लेकिन क्यों प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा है? सर इससे अभी कहाँ भी जाना है, सेम प्रोसेस। LUSR MGR to run and type LUSR MGR dot। LUSRMGR.NS. अभी अभी जो लोग जूम छोड़ के, नहीं तो क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, वो सब कुछ हो रहा है, ठीक से देखो, ठीक है। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अपना जूम को एग्जिट मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। टाइम तो एकदम कम है, और ये आज मेरे को 3 टॉपिक को कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस रहो तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। डबल क्लिक ऑन Yes, sir. यूजर, डबल क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। Administrator. अकाउंट इज Uncheck. डिजेबल अनचेक, इसको हटा देंगे। Unchecked. I डिसेबल just को हटा देंगे। click on apply, click on OK. Then right click on administrator, set password, then proceed. Which password enter? 1 2 3 4 5 1 2 वन 3 टू 4 थ्री। 5। और 1 को क्या करेंगे, डिजेबल कर देंगे। चेक ऑन अकाउंट इज डिजेबल, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन। अभी मेरा फर्स्ट काम क्या है, लॉग ऑन विथ एडमिनिस्ट्रेटर। वही बोला है ना, वही बोला है ना, लॉग ऑन विथ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। लॉग ऑन विथ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फर्स्ट। बाकी काम बाद में करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट काम में तुमको एडमिन के द्वारा एंट्री कर। एवरीवन क्लियर विद वॉइस, प्लीज रिप्लाई, देन Yes, आई विल। sir. यस सर। Administrator is username, password is 1 2 3 4 2345. 5. This is my pin, that's why. Then click on next. यहाँ पे भी सेम होगा, डबल क्लिक ऑन यूजर, डबल क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। अकाउंट इज डिसेबल को क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे। हटा क्लिक ऑन देंगे। अप्लाई, क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटर, सेट पासवर्ड, देन प्रोसीड। विच पासवर्ड एंटर? 1 2 3 4 5 वन टू 1 2 3 4 5, देन क्लिक ऑन। देन बारे को 2 को करेंगे डिसेबल, डबल क्लिक ऑन 2। चेक ऑन अकाउंट इज डिसेबल, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन। तो 2 को कर देंगे डिसेबल। अभी मेरे को क्या करना है, लॉग आउट करना है पहले। आई जस्ट लॉग आउट फ्रॉम 2 एंड लॉग ऑन विद एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इज 1 2 1 3 2 3 4 5 4। ठीक है, 1 से 5, हाँ, भूलना नहीं, क्योंकि लिखा भी है, पासवर्ड भी लिखा है भाई, ठीक है। और Yes, क्या sir. करो बोलो, इसके बाद भी नहीं याद रखोगे तो भाई तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। अरे क्या सर, रट मेरा गया क्या हमको, पता है आपको। इतना इतना सिखाने के बाद भी रटने जैसा नहीं होगा तो फिर मेरा प्रैक्टिकली बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे, एक कंप्यूटर को कंप्यूटर 1, सेकंड कंप्यूटर को कंप्यूटर 2। क्योंकि तू चाहे तुम वर्क ग्रुप करो, डोमेन करो, आइडेंटिफाई कंप्यूटर नेम से होगा। सो where I go, sysdm.cp। Is it possible to remember AC 2H 2GR? No. So that's why I just change it to वाली computer 1, computer 1। और इसको भी याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट आई गो टू रन and type sysdm.cpl। Yes, Is it possible to remember RTBJS3T4PU4? No. So that's why I just change it to computer 2। compared to. Here everyone, यस सर। click on OK, click on close, restart now। Click on OK, click on close, restart now।
Okay. तो अभी मेरे को कहाँ से जाना है? जस्ट लॉग ऑन विद एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी सेम करना है। गो टू हियर, आई जस्ट एंटर हियर ADMINISTRATUR, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चेंज द IP एड्रेस। सॉरी, नाउ ओके, नाउ क्लियर। Yes, sir. Hello, hi, OS 25. Then I go to next. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ncpa.cpl. So go to run and type ncpa.cpl. NCP. ncpa.cpl. Here also doing the same. Go to run and type Internet. ncp.cpl. ncpa.cpl. तो कंप्यूटर नेम कंप्यूटर 1, इसको करेंगे इथरनेट 0 Properties. properties इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस which IP address and याद 192.168.1.1. 1.1 1.1 खुद से कॉल कर लो। 1.2. मैं एक बार खुद से कॉल कर रहा हूँ। नहीं सर, कभी पहले बिजी जाता है सर। मैं एक बार खुद से कॉल कर रहा हूँ। जा रहा है समझ में आ सर, रहा है क्या आ थोड़ा रहा है? समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? जी सर। हाँ। Sir. देख देख के भूल कर रहे हो, देख देख के। 1.1 है फिर भी 1.1 लूपिंग करोगे क्या नेटवर्क को? नेटवर्क इंजीनियर से गाली मिलना चाहिए क्या? 2 कर दीजिए सर। नेटवर्क इंजीनियर गाली देगा तुमको। ठीक है, तो 1.2 2.5 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 क्लियर। देन बार आई गो क्लिक ऑन ओके, Okay. देन बार आई गो क्लिक ऑन ओके, देन बार आई गो क्लिक ऑन। अभी पॉपअप आएगा ना, देखो आ Yes, गया sir. पॉपअप। डू यू वांट टू अलाउ योर PC टू बी डिस्कवर्ड बाय अदर स्पीशीज डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क? क्या तुम कंप्यूटर 1 को सर्वर 1 के साथ कनेक्ट करना चाहोगे? यस सर। हाँ भी चाहिए। Yes, Yes, sir. why not? Same as here also, go to Ethernet 0, properties, Properties. Internet Protocol version 4, For use the following IP address, which IP address? 192.168.1.3. 192.168.1.3, 192.168.1.255. 192.168.1.1. 1.1. 192.168.1.1। 1.1. ये सब Okay. लिखा है ना मेरा स्क्रीनशॉट में? यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? नो No, सर। sir. कंफ्यूजन? नो सर। तो कौन 1.1 बोल रहे हो? क्लिक ऑन ओके। Okay. क्या हुआ? So, हुआ या okay, for चला? 192.168. 192.168. 1.3. 1.3 192.168. 1.1. 1.1 1.1. 1.1। ठीक है, क्लिक ऑन ओके, यस सर। क्लिक ऑन क्लोज, Okay. क्लिक ऑन क्रॉस। अभी पॉपअप आएगा तो मेरे को है वर्क नेट, Wait for the yes, Wolf network. क्लिक ऑन क्लोज। Yes. अरे जिसको मैसेज आ रहा है, जो मैसेज कर रहा है उसको बोलो 12 बजे के बाद मैसेज करने के लिए, नहीं तो जूम एग्जिट हो जाएगा, भूल जाओ। ठीक है, Yes. बेकार डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। जितना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे, बार बार क्वेश्चन आएगा, सर क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, दोबारा रिपीट करो सर। मैसेज बाद में करो ना, कोई प्रॉब्लम, मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं करने बोला। 12 बजे के बाद करो, मेरा क्लास खत्म हो जाने दो। सो जाएगा तो सुबह बात करो, ठीक है। बट अभी नहीं। अरे यार फिर से कौन है भाई? ठीक है, अरे यार हर्ष बात कर रहे हो क्या? वैल्यूएशन लगा रखा No, है, sir. ऑफ कर वैल्यू। म्यूट कर time लो। is the paras. अभी क्या करेंगे, दोनों साइड से फायरवॉल को ऑफ करेंगे। तो तुम लोग चैट में रहो, मैं भी मेरा मेरा क्लास में रहता हूँ। जिसको अच्छा लगे Firewall, पढ़ना, firewall dot जिसको नहीं dot लगे बात CPL. फायरवॉल Firewall dot फायरवॉल CPL. डॉट .cp. टर्न विंडोज Turn off डिफेंडर Windows फायरवॉल Defender. ऑन Turn करो, off टर्न ऑफ Windows Firewall. विंडोज क्लिक करो। Here also Turn the off same. Windows Defender. Windows Turn off Defender Windows firewall on rock, Defender. turn off Windows Turn off Defender, turn Windows off Windows Defender. Defender, Okay. click on
देन बारे को क्लिक ऑन क्रॉस। तो ये सब Yes, हो sir. गया। अब मेरे को क्या करना है, सर्वर 1 से कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 And कनेक्टेड है, तो चलो हम लोग फटाफट पिंग कर लेते हैं। किससे किसको पिंग करेंगे, इसमें पासवर्ड क्या होगा, ABCD एट द रेट। at the rate 123. तो पिंग माइनस टी Minus 192.168.1.2 1.2. 1.3 क्लियर। Yes, sir. Ping back. Please confirm. Then I go to next. Please confirm. Then I Sir. go to next. Sir, यहाँ पे भी लिखा भी है, देखो। कंप्यूटर 2 से कौन कौन कनेक्टेड है? one Sir, one or three. 1 or 3, 1, 1, 3. 1 and 3, One or 3 से 1, 3, ठीक है, 1, 3. 2 connected with 1 3, one, three, 3 connected with 1 2 1, 2. clear. Yes, 1 sir. connects above 1.1 connected with 1.2 1.3, 1.2 connected 1.3, with 1.1 1.3, 1.1, 1.2. 1.3 connected with 1.1 1.2 हेलो सर। clear. Yes, sir. सर इसमें जो रिप्लाई बोलो। फ्लो 192 168 1.1 दिखा रहा है, इसका क्या मतलब इसका होता है? मतलब है वो Yes, कंप्यूटर sir. 1 Yes, से sir. कंप्यूटर 2 कनेक्टेड है। अच्छा सर। कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 का नेटवर्क हम हवा आंखें से तो देख नहीं पाएंगे ना। या तुम टावर को कैसे देखते हो, टावर को देखने के लिए तुम लोग ये दाग को देखते हो, कितना टावर है। लेकिन वही टावर टावर जब मेरे को कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को चेक करना है तो पिंग से चेक नहीं, करो। ठीक है जी, IT इंजीनियर। Yes, ओके सर ओके। Yes, sir. अभी मेरे को क्या करना है, डोमेन ज्वाइनिंग करना है। लॉग ऑन विद एडमिनिस्ट्रेटर एंड ज्वाइन वर्क ग्रुप टू डोमेन। डोमेन तक जाने के लिए इतना दूर तक स्टेप, डोमेन ज्वाइनिंग के लिए इतना दूर तक स्टेप। एवरीवन क्लियर, प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू Yes, sir. मेल। ठीक सर। sir, yes. मेरे को जाना है किसमें, गो टू रन। टाइप क्या करना है, system.cpl, देन PL. क्लिक ऑन ओके। ये वाला वर्क ग्रुप जो है ना, इसको हम डोमेन में ज्वाइन करेंगे। टू रीनेम दिस कंप्यूटर और चेंज इट्स डोमेन ग्रुप, क्लिक ऑन चेंज डोमेन। डोमेन का Domain. नाम क्या है, Division. SION Division.com. देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे Ian.com. यूजर नेम क्या है, Administrator. एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर Administrator नेम, पासवर्ड इज One, ABCD two, three, four. 1 2 1, 3 2, 3, 4. 4। एवरीवन And then क्लियर, press O. प्लीज कंफर्म। देखो वेलकम आ रहा है, वेलकम Yes, टू sir. evision.com डोमेन। तो ये वाला आएगा तब मान लेना कि प्रैक्टिकल सही ढंग से जा रहा है, और ये वाला नहीं आएगा तो बेकार। ठीक है, Yes, 26 sir. क्लियर। तुम लोगों को वॉइस सुन के लग रहा है मतलब अभी जस्ट सो जाओगे तो नींद आ Nice, जाएगी। sir. अभी नहीं. system.cpl में जाना है, देन बारे Yes, sir. को क्लिक ऑन चेंज। Domain. व्हाट इज द डोमेन नेम, Division.com. revision.com, देन क्लिक ऑन ओके। Okay. देन Enter. बारे Administrator. TMINIS Administrator. creator, password is ABCD@1 2 3 One, two, three, क्या रे four. हमारा यस नहीं आ रहा तो नो। वेलकम टू Yes, revision.com sir. डोमेन, देखो ये सब भी लिखा है। हाँ, Yes, sir. मैं कोई यहाँ पे नहीं, मतलब पूरा एज इट इज। ठीक है, एकदम डॉट आ रहा है, देखो डॉट भी लिखा है, यहाँ पे डॉट आ Sir. रहा है ना, कहाँ गया, देखो एकदम लास्ट में डॉट आ रहा है, देखो यहाँ पे भी एकदम डॉट भी लिखा है।
मतलब एक छोटा भी गलती नहीं की। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, सर यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट दिया हुआ है एज इट इज। अब इसके बाद भी बोलोगे नहीं से मेरे को तो, देन आई एम ऑल्सो सॉरी, मेरे को। सो बार आई गो, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, Okay, क्लिक ऑन restart. क्लोज। Yes, क्लियर? sir. अभी मेरे को क्या करना है, उधर यूजर क्रिएट करना बाकी है ना। करते हैं विंडोज डी। अरे यार, इधर करना था, उधर हो गया। चलो हो गया, डेस्कटॉप में चला गया। अब मेरे को कहाँ पे जाना है यूजर क्रिएट करने के लिए? अब तो क्रिएट। हम्म। Go to run command. वो टू रन कमांड, देन DSA.msc. हाँ DSA dot सर्वर DSA मैनेजर, सर्वर डीएसए मैनेजर। डॉट एमएससी, MSc. Yes sir. डीएसए डॉट एमएस। Yes, sir. शॉर्टकट प्रोसेस यूज करो। यहाँ पे एकदम लिखा है, गो टू रन डीएसए डॉट एमएससी, क्लिक ऑन ओके, Okay, ओपन okay, एक्टिव डायरेक्टरी okay. यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ऑन डोमेन। समझ में आ रहा है? डबल क्लिक ऑन डोमेन, डबल क्लिक ऑन यूजर, Right click. Create राइट क्लिक ऑन न्यू, देन Yes. क्लिक ऑन यूजर। user. यूजर नाम हम देंगे Dash. कृष्णा दास, कृष्णा डॉट दास। पासवर्ड क्या देंगे यहाँ पे? SCP. ACP@123, ACP@123। यूजर must change password at next log on, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स। Mr. Das. और 10 यहाँ पे लॉगिन होगा, Yes, sir. यहाँ पे लॉगिन होगा यस सर। 100%। Yes, sir. 100%। हम्म, एवरीवन क्लियर? ACP@123 लॉग ऑन। Yes, sir. देखो लॉगिन। सर सेम तरह से हम कंप्यूटर 2 के लिए एक और यूजर क्रिएट करेंगे, सेम 10। तो क्लिक ऑन यूजर, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन यूजर, क्लिक ऑन न्यू। तुम ये वाला डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, ये जो है ना, Yes, sir. ये जो ये जो है, वहां ठीक से है, बन गए देखो। डायरेक्ट शॉर्टकट प्रोसेस। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? 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 Clear. यस क्लियर? सर, यस क्लियर क्लियर। क्लियर। Sam Das, sir. दास, सैम डॉट And दास। Das. पासवर्ड मैं दे रहा हूँ Oh, अक्टूबर, OCT@123, oh, OCT@123। User must change password at पासवर्ड next नेवर logon. password Password never never expires. changed. Click on next. Click on. Next. Finish. Sam Dadas user ID created here, then where I go to Sir. here also. So where I go, I just go to controller delete. After controller delete, where I Switch go, click on user. switch. Other user. अदर Sam Das. श्याम दास। तेलुगु में ट्रांसलेट कर लो भाई। आई नो तेलुगु। वाह। Yes, sir. अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर। अभी मेरे को फोल्डर शेयर करना है। तो चलो हम लोग FTP में जाते हैं। डोमेन डोमेन का क्लियर हो गया तो Yes, sir. यस सर। डोमेन का भेज दूं दोबारा? सर जो चलो भेज आपने देता हूँ, अभी, क्योंकि अभी सर आपने अभी तक एक ही अभी जो किया वो डोमेन।
अभी किया वो डोमेन किया। अभी तक आपने अभी जो किया राइट नाउ वट एवर आई डू दैट इज डोमेन प्रैक्टिकल। ये जो किया ना सर सर, अभी इससे कैन आई गो नेक्स्ट? यस सर। कैन आई गो Yes, टू sir. नेक्स्ट? तो मैं एक बार डोम ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या नाम था? सर्वर नेम server 1 done, IP address 1.1 done, active ADDS role done, configure domain evision.com done, create user Krishna sam.das done. Everyone clear up to now? Yes, Hello, sir. hi, please. Install client done, Windows 10 and Windows 7. Active administrator activation done. Change the hostname computer 1, computer 2 done. Change the IP 1.2, 1.3 done. To join bug group to domain evision.com done. इतना दूर तक clear. Good night. Then if you no reply. No, sir. Done, sir. हाँ सर, No, good night. डन 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 सर। डन। सो जा रहे हो क्या? नींद आ जा रहा है क्या? नहीं सर, No, sir, no. तो Please चुप किसके continue. लिए हो? चुप किसके लिए हो? नहीं सर, चुप नहीं है। सर स्क्रीन देख रहे थे सर। स्क्रीन दे दे तो मैं भी तुम लोगों का साउंड का वेट कर रहा Okay, sir. We are. हूँ। We are all silent, but I am not acceptable. No, sir. अभी मेरे को क्या करना है? फोल्डर शेयर करना है, फाइल शेयर करना है, तो फाइल सेंड करने के लिए क्या बनाएंगे? क्रिएटिंग फोल्डर। सर चार्ट क्रिएटिंग इनेबल करो फोल्डर ना। ऑन सर्वर। हाँ सर, क्या बोल रहे हो? चार्ट हाँ इनेबल करो ना सर। हाँ। चार्ट को इनेबल करो ना सर, डिसेबल हो रखा है अभी तक। नहीं, चैट में बात करोगे ना, रिप्लाई नहीं आएगा, इसीलिए डिसेबल कर देता। अरे सर, वो मैं भेज रहा था आपको अपने सिस्टम का। नहीं अभी नहीं, मेरे को प्रैक्टिकल करना। तो उस दिन मैंने बहुत टाइम लॉस किया था, तुम लोगों को 1.5 घंटा दे दिया उस दिन। मैंने वैसे कर रखा है। तो अभी सब मेरे को किस कहाँ पे किट जाना है? में? अभी मेरे को एक फोल्डर, फ्रेश फोल्डर बनाना है, सावा 1, फोल्डर 1 फॉर कृष्णा दास। इसमें हम 3 फोल्डर बनाएंगे, K1, K2, K3। क्लियर? सो के यस समझ सर। रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, और एक्टिवली बैठ के समझ रहे हो तो समझ में Clear. आएगा। Yes, sir. Actively back. Emails here also. यस सर। Server 1, सर वन। folder 2 for Sam श्याम दास। Das। क्लियर? तो यस ये है, सर। और एक फोल्डर, इसमें हम 3 फोल्डर बनाएंगे, Krishna S1, Das. 1 2. S2, S2 S3। S3। इसके लिए सैम के लिए S, कृष्णा के लिए कुक के। एवरीवन क्लियर? इसका अनुभव। यस सर। अभी थोड़ा वर्क ग्रुप प्रैक्टिकल याद है, जिसके लिए तुम लोगों ने साइलेंट था, उसके बाद मैंने Sharing सारे घर security. शेयर किया सर था। तो वो अभी तुम लोग परमिशन बताओ। देंगे ना इसको, Sharing फोल्डर करना को। है permission. Yes, दोबारा एक sir. हो, सर्वर 1 फोल्डर प्रॉपर्टीज 1 में क्या प्रॉपर्टी, करेंगे? यस सर। Sharing. सर्वर 1 फोल्डर 2 Sir, एक एक करिए प्रॉपर्टीज। सर। शेयरिंग। अभी यहाँ पे कहाँ पे जाना है? शेयरिंग में Sharing. जाना है। Sharing में जाना है। शेयरिंग में जाना है। शेयरिंग वाला क्लियर हुआ एडवांस सबका? Advanced शेयरिंग। sharing. एडवांस शेयरिंग। ना, पहले शेयरिंग वाला क्लियर हुआ। यस सर। Yes, सर sir. दोबारा रिपीट करना सर। यही तो दिक्कत है, इसी में ही गलती है। कहाँ में समझ में नहीं आया किसको? मैं एक बार तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। बात करो सर। कौन हो? हाँ, मैंने हाँ फोल्डर में प्रॉपर्टीज में जा सकते हो। मैंने वही हाँ। फोल्डर प्रॉपर्टीज में जाके जनरल का नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेयरिंग में किया। क्लियर? Yes, क्लियर। sir. Clear. दोबारा बता दूं? Yes, sir. चलो Clear. क्लोज। राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ अभी? कहाँ Now पे go to जाना है? sharing. Sharing. शेयरिंग। हियर ऑल्सो द सेम, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग। क्लियर?
प्लीज रिपीट अगेन सर। यस सर। कौन बोला, पिंटू ने? यस सर। किसने बोला प्लीज रिपीट अगेन सर? मैंने बोला सर, तय कर दिया। तुमको ये वाला पता नहीं? अरे नहीं सर, मेरा सिस्टम अभी मोबाइल कनेक्ट किया ना, सिस्टम कनेक्ट क्या हो रहा है वो उसमें। भी है, तुम इतना अच्छा तुम इतना अच्छा इंजीनियर हो, तुमको ये पता नहीं शेयरिंग? ये सर मैं पता है सर। ट्रस्ट नहीं। सर ये इसमें हम ट्रस्ट। एडवांस शेयरिंग क्या है सर? अरे एडवांस एडवांस शेयरिंग शेयरिंग बाद में सर। छोड़ो ना, तुम पहले शेयरिंग तक समझ लो। हाँ ओके। शेयरिंग तक क्लियर हुआ? ओके। तो अभी यस देखो सर। यहाँ पे नॉट शेयर्ड है, यहाँ पे भी नॉट शेयर्ड है। तो मेरे को जाना कहाँ है? एडवांस शेयरिंग। एडवांस एडवांस शेयरिंग। शेयरिंग। एडवांस शेयरिंग में वर्क ग्रुप के तरह ही मेरे को चेक ऑन शेयर दिस फोल्डर, शेयर दिस फोल्डर। चेक ऑन शेयर दिस फोल्डर। क्लियर? यस सर। यस सर। अभी कहाँ पे जाना है? परमिशंस में जाना है। आई जस्ट गो परमिशंस। टू परमिशंस। परमिशंस में सर एवरीवन रहेगा या एवरीवन को हटा देंगे? हटा देंगे। एवरीवन रहेगा सर। रीड ओनली रहेगा? रखेंगे। ओ माय गॉड, रहेगा बोल रहे हो? सर रहेगा रहेगा तो तो फिर वही शेयरिंग सिक्योरिटी, फुल कंट्रोल। रहेगा। वही बेकार सिक्योरिटी। रहेगा। रहेगा तो ये वाला सही है, 5 नंबर पर। इस केस डोमेन में का तो नहीं 5 नंबर रहेगा। पॉइंट सही है। यहाँ तो सर अब नहीं डिसएडवांटेज हो रहेगा। जाएगा सर। अब तुम लोग डिसाइड करो, तुम सिक्योरिटी सर दोगे, एवरीवन को अरे हटा सर दो। नहीं रहेगा। नहीं और रहेगा इफ यू सर। तो तो हटा इफ दो। यू डोंट प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी देन रहेगा, देन एवरीवन रहेगा। बिकॉज आई जस्ट ओनली कस्टमाइज दिस यूजर ना, आई शेयरिंग विद सिलेक्टेड यस सर। यूजर, आई एम शेयरिंग विद सिलेक्टेड यूजर, आई एम शेयरिंग विद सिलेक्टेड कृष्णा क्लाइंट। एंड कृष्णा एंड श्यामदास। तो अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? कृष्णा का कृष्णा फोल्डर में एक्सेस देंगे, तो इसमें एवरीवन को हटा देंगे, इसमें रिमूव। एवरीवन को रिमूव कर देंगे। क्लियर? एवरीवन, रिमूव एवरीवन फर्स्ट। अरे सर दो डरना नहीं है भाई, सब कुछ लिखा हुआ है भाई। एक ओके बच्चा दबा भी दो कर सर, अप्लाई अप्लाई को मत दबाओ। बच्चा भी कर लेगा भाई, सब कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ सर। में आ रहा है? सर सो के क्लास कर रहे हो क्या? नहीं नो सर, डोमेन सर। वोमेन किए थे। मैं भी सो जाता हूँ तो। तुम अरे लोग नहीं सो सर, रहे हो तो मतलब मेरा भी। तुम लोग नहीं सर, तुम उठे लोग हुए हैं। तुम लोग सोने से ना मेरे को भी नींद आ रही। तुम लोग ऐसे बात कर। तो मेरे को कृष्णा को क्या करना है? ऐड करना है। KRISHN.10। क्लियर? कृष्णा को यस सर। कृष्णा को शेयर करेंगे, और सैम में सैम को शेयर करेंगे। आई जस्ट एडिंग हियर सैम। यस क्लियर सर। एवरीवन? प्लीज कंफर्म देना। यस सर। ये फोल्डर किसको राइट्स दिया? साबा वन फोल्डर वन फॉर वन, कृष्णा फोल्डर दास वन को। पर। यस। सर सबको मैं इतना ये दूर जो तक पूछा था। हजम, ये वाला प्रैक्टिकल हजम हुआ पहले, उसके बाद बताओ, तभी हम जाएंगे नेक्स्ट। यस सर, क्लियर है। एवरीवन क्लियर? इतना दूर तक? यस सर। यस सर। कृष्णा के लिए कृष्णा को एक्सेस दे दो, सैम के लिए सैम को दे मुझे दो। शाम को एक्सेस। ठीक कृष्णा है? दो हुए तो। कृष्णा दो रहेगा अलग अलग। वन जैसे टू। यहाँ पे लेकिन कृष्णा.10 डाला, तो वहां तो पे पूरा, D2 रहेगा, मेल आईडी से एक्सेस देंगे ना। तो जैसे आपने बस कृष्णा.D2 कृष्णा एट द रेट लिखा, आपने बस कृष्णा लिखा, सिस्टम को कंफ्यूजन नहीं होगी सर, दो में से किसको उठाना है? पूरा नाम लिखते तो 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 वन टू। तुम किसके लिए एडमिन हो, पहले ये बताओ। तुमको एडमिन मैं। क्यों, किसके लिए रखा गया है? कृष्णा.D1 को भी समझ कृष्णा। पाओगे, लगा दिया करो। D2 को भी अरे, समझ पाओगे। दोनों कृष्णा में दैट्स व्हाई। डिफरेंस करने के लिए सर। हवा आ रहा है। क्लियर? यस क्लियर सर। सर। मैं अगर सर कृष्णा यहाँ कुमार अगर कृष्णा कृष्णा अगर दास दो के तीन होंगे रिस्पेक्टिव में तो बोल रहा था। दोनों दिखाएंगे ना सर, अगर कृष्णा हम सर्च करेंगे तो वहां पे। मेरे को यूजर नाम से सर्च करना ना।
मैंने यूजर लोगों अच्छा नेम क्या दिला, कृष्णा डॉट दास दिया, राइट। नहीं, जैसे मैं एक एक चीज पूछ रहा था, कृष्ण दास भी कृष्ण कुमार भी है, आपने कृष्णा लिखा तो दोनों दिखाएगा ना, जब आप कौन सा सिलेक्ट करना है हाँ फिर हाँ हमको। हाँ हाँ, तो हाँ, वो उसमें मैं पूछ तुमको, रहा था। हाँ तो उसमें तुमको हाँ कृष्णा डॉट दास को सिलेक्ट करना है। वही सर वो तुम हाँ, जिस ठीक है यूजर ठीक के है। तुम जिस यूजर के लिए परमिशन दे रहे हो, उस यूजर को नाम मेल आईडी तो पता होना चाहिए ना। हाँ, नहीं मुझे लगा कि सर पूरा नाम भी पता होना चाहिए, ऐसे मैं कृष्णा डाल दूंगा, कृष्णा दास भी है, कृष्णा कुमार भी है, मैं कुमार को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो नहीं, पॉपअप हो जाएगा, फिर इजी है। तुम्हारा मेल आईडी यूजर भेजेगा ना, यूजर आईडी मेल मेल पे तुम्हारा यूजर हाँ आईडी वो तो, भेजेगा। जो अच्छा अच्छा, यूजर को मेल पे एक्सेस चाहिए भेजेगा, ओके। वो राइट्स वो अपना टेक्निकल मैनेजर के साथ अप्रूव लेके तुमको मेल करेगा कि आई नीड एफटीपी एक्सेस, दिस इज माय मेल आईडी, दिस इज माय पासवर्ड। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है ठीक है। तो वो तुम्हारा मेल आएगा। जब तक मेल नहीं आएगा तब तक कंपनी में कुछ काम मत करो, हाँ क्योंकि हाँ दैट सर, इज द ठीक है सर। ऑथराइज नेम। ठीक है, ठीक। चाहे तुम रिमोट एक्सेस करो, चाहे तुम मेल एक्सेस करो, चाहे तुम आउटसाइड मेल एक्सेस करो, चाहे तुम कुछ भी करो, सबका हम्म। अप्रूवल जरूरी है। दैट इज द ठीक है सर। रूल ऑफ द कंपनी। यही रूल है कंपनी। ठीक है समझ में सर। आ रहा है? ओके सर। अब मान लो कृष्णा के पास फुल राइट्स है, तो उसके पास पूरा राइट्स होगा। वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास फुल एक्सेस है, आई हैव दिस परमिशन, आई हैव दिस मेल, तो वो मेल तुमको भेजेगा। तो मुझे मेंशन और करेगा राइट्स पूरा क्या क्या तो चाहिए। नॉर्मली व्हाट विल प्रोवाइड, नॉर्मली विल जस्ट प्रोवाइड ओनली रीड राइट्स, डोंट गिव वो, फुल एक्सेस, ओनली रीड एक्सेस यू विल गिव। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन here also done, click on apply, click on OK, ओके click on apply, click on OK, click on apply, click on OK। तो देखो शेयर हो रहा है। सिक्योरिटी लेकिन यहाँ पे भी डन नहीं होगा, इसके लिए तुमको क्या करना जरूरी है, सिक्योरिटी यू विल आल्सो सिक्योरिटी टेबल्स, तुमको सिक्योरिटी एडिट, में भी जाना। आफ्टर एडिट सिक्योरिटी में बार जाएंगे आएगा, फिर। टू चेंज परमिशन क्लिक ऑन एडिट, टू चेंज परमिशन क्लिक ऑन एडिट, यहाँ पे भी ऐड करना। कृष्णा दास। So here also added here, what I add here, कृष्णा दास। Krishna dot das, here also add here, किसको श्याम ऐड दास। करेंगे, श्याम dot das। यस सर क्लियर। अच्छा, ये डेटाबेस कहाँ पे है, सर्वर में है या एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। सर्वर में है ये सर, वाला, सर्वर ये सर्वर में है, रॉन्ग सर्वर आंसर, में है सर ये अब सिस्टम रॉन्ग पे है ना। आंसर। मैंने दो 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 ऑप्शन दिया, सर्वर में है या एक्टिव डायरेक्टरी में। सर्वर से इनको परमिशन जाएगा, इस सिस्टम पे जाएगा। तुमको देख देख के भूल बता रहे हो जी, सब लोग देख देख के भूल बता रहे हो। देखो, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, डोमेन है evision.com, evision के अंदर ये सब। समझ में आ रहा है, यस सर। सर्वर में नहीं है, सर्वर में नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी में। एक्टिव डायरेक्टरी डिसेबल हो जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी काम करना बंद कर देगा, तो कोई भी राइट्स दे पाओगे, इज इट पॉसिबल टू मैनेज एनी राइट्स। नो। नो, इट्स टोटली ब्लॉक इफ द एडीडीएस। इसीलिए क्या लिखा था, तुम लोग भूलने में एक्सपर्ट हो, इस लाइन को पढ़ो। ये जो रीड राइट्स दे रहे हो या फुल एक्सेस दे रहे हो, ये किसके लिए दे रहे हो, तुम लोग एडमिन हो, लेकिन कौन हेल्प कर रही है, एडीडीएस एडीडीएस सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर, securely manage this information and facilitate resources, sharing and collaboration between users। एडीडीएस हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर, तुम लोग किसके द्वारा मैनेज कर रहे हो, हम लोग किसके द्वारा मैनेज कर रहे हैं, एडीडीएस के द्वारा। एडीडीएस के हम थ्रू लोग कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। सिक्योरली मैनेज दिस एडमिनिस्ट्रेटर इंफॉर्मेशन, सिक्योरली मैनेज दिस इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, एवरीवन को हटाया और कृष्णा और सैम को ऐड किया पर्टिकुलर फोल्डर सिक्योर में, परमिशन दिया and facilitated resources. What resources I provided? FTP resources and sharing and collaboration between users. Where I sharing folder and files, sharing folder and files to selected users. Clear? Active Directory क्लियर। second line. इससे अच्छा तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम और नहीं दे सकते। क्लियर नहीं हुआ तो बोलो, क्लियर है सर। तोड़ तोड़ के बताया, मतलब पॉइंट वाइज मैंने बताया, बोलो कहाँ पे क्लियर नहीं। समझ में आ रहा है, ये सब एक्टिव डायरेक्टरी के द्वारा ही पॉसिबल।
If you have domain access, you can manage it. Domain access नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते. Then where I go, click on apply, click on OK, close, click on apply, click on OK, close. बहुत अच्छा. अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? कंप्यूटर, दोनों अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग यूजर. Yes, sir. अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? कृष्णा पे जाना है. कृष्णा पे पासवर्ड क्या है? SCP@123. Yes, sir. SCP@123. Then where I go? I just go to run. Run. What I enter? 192.168. 192.168.2. अच्छा, ये किसके लिए लॉगिन है? दैट इज लॉग ऑन विद कृष्णा. तो K1 K2 K1 K1 K2 K3 एक्सेसिबल, बट S1 S2 एक्सेसिबल. No, sir. कृष्णा कृष्णा अकाउंट से कृष्णा का प्रोफाइल से हम सैम का एक्सेस कर सकते नहीं हैं. सर. क्लियर सिक्योरिटी. सर इसमें ऐसा कोई किसको फंक्शन एक्सेस नहीं है? कर सकते हैं? इसमें ऐसा कोई फंक्शन कृष्णा नहीं है कि मैं श्यामदास को हाइड कर दूं, दिखे ही ना जब मैं लॉगिन करूं कृष्णा से. को हाइड कर दो. नहीं, ये तो हाइड ही तो है भाई. तुम फोल्डर को देख हाँ ही नहीं पाओगे इसके अंदर है क्या. पर वर्क ग्रुप में यही चीज फोल्डर एक्सेस होता है. हाँ, ये तो होता ठीक है, है. सही कह रहा. Saba 1, folder 1 for Krishna Rotas. It's accessible. K1, K2, K3. Why? Because where it's log on to the Krishna. Same as here also, the computer 2 also. Computer 2 किसके login है? That is log on with Samdas. So where I go, I just enter 192.168.1.1. Click on OK. ये किससे लॉगिन है? सैम से लॉगिन है. तो हम किसको लॉगिन कर पाएंगे? S1 S2 S3 को लॉगिन कर पाएंगे. हम K1 K2 K3 को एक्सेस कर पाएंगे? नो. क्या लिख के आ रहा है? यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस फॉर कृष्ण दास. कॉन्टैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू रिक्वेस्ट एक्सेस. क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir, clear. तो ये है. और इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एकदम दिया हुआ. जो जो लिखा है सब कुछ लिखा है. ठीक है. कृष्णा डॉट दास बाई सैम डॉट दास फोल्डर, क्योंकि ये किससे लॉगिन है? कृष्णा से लॉगिन है. डिवीजन स्लैश कृष्णा. इसीलिए किसका फोल्डर एक्सेस नहीं कर सकता? सैम फोल्डर. Yes, sir. Here also Sam.das, Krishna.das folder also not accessible. Clear everyone? Please confirm. Then I go to next. Yes, sir, clear. Yes, sir. FTP तो क्लियर हो गया सर. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Remote. रिमोट. रिमोट मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया. डेफिनेशन क्लियर हो गया तो. लेकिन डोमेन को भूलना नहीं. डोमेन बीच में रहे, वो सेंट्रलाइज, उसके द्वारा ही हम लोग काम कर रहे हैं. रिमोट किसका रिसोर्सेस है? वो डोमेन का रिसोर्स. डोमेन का. फाइल एक बार ओपन होगा तो उसको सेव करना है, नहीं तो एडिट नहीं. फाइल, रिमोट मैनेजमेंट. तो यहाँ पे देखो, ये सब कुछ कर लिया. इंस्टॉल विंडोज सर्वर, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, डिसेबल अदर अकाउंट, साइन आउट फ्रॉम अदर अकाउंट, लॉग इन विद एडमिनिस्ट्रेटर, चेंज द सर्वर नेम, server 1 DC01, change the IP address, activate ADS role, configure domain, create user. इतना दूर तक पता है? हाँ सर, पता. यस सर. Yes, sir.
अभी कहाँ पे जाना है? यहाँ पे भी देखो सेम है, इंस्टॉल विंडोज ऑलरेडी डन, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, डिसेबल अदर अकाउंट, साइन आउट फ्रॉम अदर अकाउंट, चेंज द होस्ट नेम, चेंज द आईपी, ज्वाइन वर्क ग्रुप टू डोमेन डन। इतना दूर तक क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Clear. So right now where I go, I just go to remote. तो रिमोट के लिए परमिशन कौन देगा? Who will give this permission? Server. Local administrator giving this permission. Because यहाँ पे कौन login है? That is log on with the Use. others. User. कृष्णा is ये कौन है? यूजर है। ये यूजर है। User है। तो पहले कहाँ से लॉग इन करेंगे? फर्स्ट आई लॉग आउट फ्रॉम करंट अकाउंट, देन वेयर आई लॉग आउट, वेयर आई लॉग ऑन, आई log on with administrator. What is the password? ADMINIS TRAT. Password is 1 2 3 1 2 3 4 5. 4 5 अभी भी सर्वर एडमिन समझ रहे हो? नहीं सर। कंप्यूटर में लॉग इन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? Then where I go? I just go to run. After run where I go? sysdm.cpl. मेरे को कहाँ पे जाना है? sysdm.cpl में जाना है। sysdm.cpl में कहाँ पे रिमोट ऑप्शन शो कर रहा है? वेरी विजुअल रिमोट ऑप्शन। Remote. Last. Right. Last. Last. Go to last option, remote. Remote is enable or disable? Disable. Disable. Don't allow remote connection बोल रखा है सर उसने। Allow remote connection to this comp. Allow पे क्लिक कर दो आप। सर मैं अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर कर दूंगा और ऊपर वाला हटा दूंगा, तब भी काम नहीं करेगा वो तो। यहाँ पे मेरे को क्या करना है? डोंट अलाउ से अलाउ करना, अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। क्लियर? Yes sir. Then where I go, click on selective. Select area. Then where I go, the user listed below can connect to this computer. Any member of the administrator group, even they are not listed.
So where I go, I just click on add here. Add network. Then where I go, I just click on add here. What user I wants to add here? श्याम दास ये सैम के लिए यूज हो रहा है कंप्यूटर वन वाला, ये तो कृष्णा दास है ना। या कृष्णा के लिए यूज हो रहा है? कृष्णा के लिए यूज हो रहा है ना, Krishna. Krishna Das. कृष्णा 10। कैसे पता चलेगा? दिस पीसी सी ड्राइव यूजर्स कृष्णा User से है ना, Krishna Das. क्लियर? Yes, sir. देन भरेगो, आई जस्ट कृष्णा डॉट 10, देन भरेगो, क्लिक ऑन ओके। Yes. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम किसका देंगे? Krishna डोमेन का, Das. क्योंकि कृष्णा को बनाया किसने? हु क्रिएटेड कृष्णा दास? कृष्णा दास आईडी क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ Administrator domain server. Krishna Das. Administrator is username, password is abcd@1. ABCD@123. क्लियर? Hmm. सर क्लियर नहीं हो रहा, मेरा तो दिमाग घूम गया इसमें। कृष्णा किसका यूजर है? कृष्णा कहाँ पे क्रिएटेड है? यहाँ पे एलिवेसर एमजीआर में है। हाँ, ये वाला सिस्टम है, इस सिस्टम पे ही हम कृष्ण दास का नाम डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मुझे कृष्णा डॉट दूसरे का 10 है सिस्टम चाहिए प्रेजेंट। होता है एनीडेक्स पे, तो मैं उसकी आईडी डालता हूँ ना, पहले जो ये मुझे बताओ, जिसका पहले एक्सेस। एनीडेक्स वाला रिमोट और ये वाला रिमोट पूरा अलग। पहले ये बताओ, अच्छा, ये जो यूजर है कृष्णा, ये कृष्णा यहाँ पे प्रेजेंट है और डोमेन कंट्रोलर में प्रेजेंट है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन अंदर प्रेजेंट। कंट्रोलर में। तो यहाँ या पे Domain. एक्टिव ए- डायरेक्टरी, ये एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, लोकल सर्वर गोइंग टू ए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर गोइंग टू ए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके करेंगे, ये ऐड हुआ ना, क्योंकि ये किसका यूजर है? कृष्ण दास। डोमेन का यूजर है, इसीलिए Domain क्या आ का. रहा है, division/कृष्णा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। Yes, sir. Yes, sir. इस लाइन को पढ़ो, तब क्लियर होगा। इस लाइन को पढ़ो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है। पढ़ो, पढ़ने के बाद ही समझ में। पढ़ने की बोला, चुपचाप हो। ये कैसा पढ़ना है भाई? सर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, ये इस वाले सिस्टम का है ना, ये जिसको हमने अभी लॉगिन कर रखा कंप्यूटर वन ट्रांसलेट का। करो, तुम्हारा तुम्हारा अपना लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। सर ये लिखा यूजर लिस्टेड बिलो कैन कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर। जो लिस्ट जो हमने बनाएंगे इसमें, जो जिसका नाम होगा वो इस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। और हाँ। सेकंड लाइन में लिखिए एनी मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप कैन कनेक्ट इवन इफ दे आर नॉट लिस्टेड। मतलब जो, जैसे यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, यूजर भी होते हैं, दोनों होते हैं, वो हम्म, भी इसको एडजस्ट एक्सेस कर सकता है, और उनका लिस्ट में नाम नहीं है तब। हम्म। क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी हैज एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर को ऑलरेडी एक्सेस है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर को हाँ, एक्सेस देना जरूरी नहीं। क्लियर? अच्छा, ठीक है सर। इसकी वर्किंग दिखाना कैसे काम करेगा ये। क्लियर हुआ? हाँ सर, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Administrator already has access. तो एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस देने का जरूरत
नहीं है। क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेस। यस सर। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया किसको, कृष्णा को, डिवीजन कृष्णा स्लैश दास कृष्णा दास। क्लिक ऑन ओके, लॉगिन। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। अब इसको एक्सेस कौन करेगा? सर्वर एक्सेस करेगा ना, यस सर, क्योंकि हम लोग सर्वर को सर्वर मिल के गया। द्वारा कंट्रोल करेंगे। पहले हम लोग ये डोमेन में लॉगिन करते हैं, विजन पासवर्ड इज abcd@123। यहाँ ओके। पे हम किसको ओपन करेंगे, रिमोट, REMO, क्लियर। यहाँ पे क्या नाम देंगे, what is the name और what is the IP है? 212.168.1. 92.168.1. कंप्यूटर 1 का एड्रेस देंगे यहाँ पे 192.168.1.2। 2 क्लिक ऑन सर। Yes, sir. यहाँ पे इविजन से एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा या यूजर से लॉगिन करना? एडमिन। यूजर से भी कर सकते हो आप, अच्छा, यूजर जिसका से हमने कर नाम सकता दिया हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है तो एडमिन को, यूजर को ऐड हाँ। करने का कुछ जरूरी था? नहीं, तो मेरे को यूजर कॉल करेगा, मान लो कृष्णा ने कॉल किया, कृष्णा फेसिंग सम प्रॉब्लम, एंड कृष्णा किसको कॉल करे, एडमिन को तो कॉल करे, वो तो एडमिन ही करेगा फेसिंग सम प्रॉब्लम एक्सेस। प्लीज चेक माय प्रॉब्लम। तभी इसमें किससे लॉगिन करेंगे, आई जस्ट गो टू मोर चॉइसेस, then click on use a different account. यूजर डिफरेंट। What is the username? I just enter krishna.das, कृष्णा दास Krishna डॉट dot password दास। das. is scp@1. अच्छा, ऐसे वर्क करेगा, ठीक है ठीक है, अब समझ आ गया सर then क्या where I कहानी go, चली बीच में कंप्यूटर किसके वन में। द्वारा बीच login में से करूं, एडमिनिस्ट्रेटर हट गया। scp@123, clear, यस सर। Yes, sir. then Clear. click on, समझ में आया? यस सर। डायरेक्ट किसके द्वारा लॉगिन हो, ओके करो। जैसे देखो यहाँ एडमिन पे के लॉगिन थ्रू। हो जाएगा, यहाँ पे बोलेगा अनदर यूजर साइन इन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, दे विल डिस्कनेक्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू एनीवे। जब तुम इसको यस करोगे तो एक रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, कंप्यूटर 1 के पास जाएगा। क्या कंप्यूटर के वन बोलेगा, के पास। डू वांट टू डू वांट टू अलाउ इविजन स्लैश कृष्णा टू कनेक्ट टू दिस वर्चुअल दिस मशीन, कंप्यूटर दिस मशीन, मशीन। click OK and disconnected your session immediately and click cancel stay connected। तो बार को I just click on OK। ओके। and जब ओके करेंगे विंडोज 10 डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और सर्वर विंडोज 10 को कंट्रोल करने लगा। एक्सेस कर लो। Clear? कि एनी टेक्स्ट की तरह नहीं है कि यूजर क्या कर रहा है वो भी देख पाएगा, दैट इज बिल्कुल नॉट अलग है पॉसिबल। सर, ये तो मतलब बिल्कुल अलग है। दैट्स व्हाई उसका इट्स टू उसका मच डिस्प्ले ब्लैक सिक्योर, हो गया। इसीलिए इसका ये मतलब बहुत सर, सिक्योर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कंप्यूटर वन एक्सेस करना है हम्म, तो हमें उसके अंदर आईडी देनी पड़ेगी एकदम यूजर एकदम की, एकदम परफेक्ट समझा, एज ए यूजर मतलब। अब परफेक्ट। सर जैसे यूजर को कोई प्रॉब्लम होगा तब वो सर्वर से हेल्प लेगा। नहीं, सर्वर पे अभी तभी अभी एफटीपी ये शेयर किस की परमिशन कंप्यूटर होगी में तभी प्रेजेंट, करेगा वो। अभी इसे किस कंप्यूटर में प्रेजेंट, कृष्णा दास ये कंप्यूटर वन में है। कंप्यूटर है। कंप्यूटर कृष्णा दास। 1 में है। इसका कौन सा यूजर है, इविजन इज ए यूजर ऑफ इविजन, कृष्णा इज ए यूजर ऑफ इविजन। यूजर। इसका होस्ट डिवीजन नेम क्या, कंप्यूटर 1। इसका आईपी क्या है, 192.160.1.2। 1.2 इसका विंडोज वर्जन क्या है, विंडोज 10 प्रो। अंडरस्टैंड। तो लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, सर्वर कंट्रोल, समझ में सर्वर आया? कर रहा है। सर हमने अभी श्याम दास को नहीं किया ना कॉन्फ़िगर, एक बार सर वहां पे श्यामदास करना, को नहीं, हिट करना कृष्णा को उसको। कंट्रोल। नहीं, कृष्णा को किया ना एक किस बार, मैं कह रहा हूँ श्याम दास को हिट करना एक बार आप। सैम को होगा नहीं ना, तुम यहाँ से सैम को सर नहीं ले सकते क्योंकि सैम नहीं सर, वो ऐड नहीं है ना वो यूजर बोलेगा में। क्या, वो बोलेगा क्या, मुझे ये देखना है ना, बोलेगा जैसे क्या मान वो। लो 1.2 कर रहा हूँ, 192.168.1.2 1.3 कर रहा हूँ। 2 में कृष्णा से हम सैम को ऐड करेंगे, sam.das, पासवर्ड इज oct@123, क्लिक ऑन यस। क्या बोले, द कनेक्शन वाज डिनाइड बिकॉज यूजर अकाउंट इज अकाउंट इज नॉट नॉट ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड फॉर अ रिमोट लॉगिन। परमिशन नहीं दिया है इसी। कंप्यूटर टू ने ऑथराइजेशन नहीं दे रखी उसको, तभी नहीं कर पा रहा वो। हम्म
ठीक है क्लियर हुआ? क्लियर। जिस कंप्यूटर में तुमको परमिशन देना चाहिए उसी कंप्यूटर में तुमको ऐड करना पड़ेगा यूजर। हम्म। हम जब तक यूजर को ऐड नहीं करेंगे तब तक परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल यूजर है ना। एनी मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप इवन दे आर नॉट लिस्टेड, मान लो कोई मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है तो उसको ऐड करने का जरूरत नहीं, लेकिन जो यूजर है उसको ऐड करने का जरूरत है 100%। क्लियर? क्लियर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बोलो कोई डाउट? और सर जिसका सर सर्वर पे सिस्टम को लेना है उसका रिमोट एक्सेस भी ऑन होना चाहिए तभी होगा सर। कहाँ से कहाँ पे भी कनेक्ट करोगे, लेकिन एनेबल होना चाहिए बस। हाँ एडमिन सर। विदाउट परमिशन भी हो सकता है और यूजर को परमिशन देना पड़ेगा, इतना ही डिफरेंस। यूजर है, जिस कंप्यूटर में मेरे को परमिशन चाहिए उसमें ऐड करना पड़ेगा यूजर। जैसे कंप्यूटर 1 का रिमोट लिस्ट में मैंने कृष्णा को ऐड किया, कंप्यूटर 2 में भी रिमोट लिस्ट में किसको ऐड करेंगे? कृष्णा को ऐड शाम करेंगे, को। सैम को ऐड करेंगे, क्योंकि हम system.cpl में जा रहे हैं। ये कौन है? नॉर्मल यूजर है, डोमेन यूजर है, तो डोमेन यूजर के द्वारा पॉसिबल है सब कुछ? नहीं। इसीलिए हम नहीं सर। किसके द्वारा लॉगिन करेंगे? एडमिन के द्वारा लॉगिन। तो कंट्रोल ऑल्ट एडमिन स्विच एडमिन अदर यूजर। बताएगा कि एडी वाले जो यूजर बने हुए हैं इसके अंदर उसको एक्सेस देंगे यहाँ पे तभी मेरे को जाके कहाँ से सर्वर भी ले लॉगिन पाएगा। करना है? एडमिन से लॉगिन करना। समझ में आ रहा है? लॉग ऑन विद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी क्या है? DMINISTRATOR। पासवर्ड क्या है? 12345। देखो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर 2 शो हो रहा है, इस एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दो, देखो इविजन शो। इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, कंप्यूटर 2 शो, देन क्लिक ऑन दो। ये लोकल कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, लोकल कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर 2। यहाँ पे तुम हु एम आई करोगे तो ये क्या शो होगा? कंप्यूटर 2 एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? अभी मैं इविजन में नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने लोकल एडमिन से लॉगिन किया। So where I go now, I go to system.cpl. Right now it's present on domain computer2.evision.com. Then go to remote. रिमोट अभी अलाउ है या ऑफ है? रिमोट ऑफ इज ऑफ है। टर्न ऑफ ऑफ। है। तो ऑफ मेरे है। को क्या करना होगा? अलाउ अलाउ। करना पड़ेगा। अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर्स रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप लेस सिक। तो मेरे को करना है लेस सिक पर, क्योंकि एनी वर्जन है ना, विंडोज सर्वर है, विंडोज 10। विंडोज 10 को कनेक्ट, विंडोज सर्वर से विंडोज 7 को कनेक्ट करो, तो एनी एनी वर्जन। देन भरेगो सिलेक्ट यूजर। इस यूजर में किसको ऐड करेंगे? सैम को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सैम 10। सैम 10 कहाँ पे बना हुआ है? सैम 10 यूजर आईडी क्रिएटेड ऑन DSA.ms। यहाँ पे बना है ना Sam.10। यस सर। किसने बनाया? डोमेन एडमिन ने बनाया। तो मैंने एडमिन। मैंने पहले ही बताया था, डोमेन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इज गोइंग टू ए डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। Domain administrator created Sam.10, but where I added this, I added on computer to remote list. But mainly who have this permission? कौन परमिशन देगा तब हम एक्सेस दे सकते हैं? लोकल when the एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल administrator of एडमिनिस्ट्रेटर। domain एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डोमेन जब तक लॉगिन नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा, तब तक हम ऐड नहीं करते। क्योंकि ये जो Sam.10 है, ये किसने बनाया है? सर्वर 1 एडमिन ने बनाया। सर्वर 1 ने। ठीक है, तो इसको ओके करने के लिए किसको जाना पड़ेगा? ये जो पासवर्ड है ये किसका पासवर्ड है? डोमेन का पासवर्ड। तो प्रूफ डोमेन क्या है? का। ये वाला डोमेन तुमको दिखा रहा डिवीजन है। वाला। यहाँ पे तुम 1 2 3 4 5 दे दोगे चलेगा? मान लो यहाँ पे मैं नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, क्या आएगा? ये नहीं आएगा, सर। लॉग ऑन अननोन यूजर नेम एंड बैड पासवर्ड। सो व्हाट आई एंटर, आई जस्ट एंटर एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम एंड पासवर्ड इज abcd@1 2 3 4। समझ में आ रहा है? क्योंकि यही परमिशन दे पाएगा डोमेन यूजर्स को। ऐड हुआ? इसीलिए मैंने डोमेन थ्योरी में लिखा था एनी एनी पासवर्ड है सेम फॉर ऑल कंप्यूटर। याद है पॉइंट? ये क्या है? पासवर्ड है सेम फॉर ऑल कंप्यूटर।
क्लियर एवरीवन? यस सर। किसका पासवर्ड सेम है? डोमेन का। कि डोमेन के क्लाइंट भी एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर का। ऑफ डोमेन है, सर्वर भी मेंबर ऑफ डोमेन, क्योंकि सब कौन सा डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं? एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर? डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेम होगा, हाँ, है ना सर? हाँ ठीक। यस। तुमको जहां पे यूजर आईडी मांग रहा है, जैसे मान लो ये रिमूव कर दिया, इतना दूर तक ऐड कौन किया? इतना दूर तक ऐड लोकल एडमिन ने किया। जिस ओके। एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी है, एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम एंड पासवर्ड इज 12345। लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो यूजर है, यहाँ पे जब यूजर ऐड करेंगे सैम डॉट दास, इसको कौन ऐड करेगा? नाउ ये इसको डोमेन सर। potentially administrator is username, password is abcd@123। क्लियर 123। हुआ कि नहीं? क्लियर। क्योंकि लोकल कंप्यूटर में जब तक एक्सेस चाहिए तब तक तुम लोकल एडमिन के द्वारा काम कर सकते, लेकिन ये जो कृष्णा डॉट दास, सैम डॉट दास, ये सब किसका मेंबर ऑफ है? दैट ऑल आर द मेंबर ऑफ डोमेन। तो इसीलिए मैं डोमेन का पासवर्ड यूज करेंगे। विदाउट डोमेन पासवर्ड दैट नॉट सर एक एक्सेस। चीज पूछ रहा था, अगर मैं फायरवॉल अभी ऑफ कर दूं इस कंप्यूटर 2 का, लॉक कर दोगे तो पिंग नहीं मिलेगा। तो ये इसका नाम भी नहीं आएगा फिर, ये जैसे डोमेन डिवीजन दिखाई नहीं देगा, है ना? ये हाँ, पॉपअप खुल वो जाएगा दिखाएगा, विंडो वो सिक्योरिटी वाला? दिखाएगा, वो दिखाएगा, दिखाएगा लेकिन वो? पिंग नहीं कर दो। जब पिंग मतलब नहीं कर। पिंग का मतलब ये हुआ कि मैं सेव करूंगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से सेव नहीं होगी। पिंग मतलब आईसीएमपी मैसेज, आईसीएमपी मैसेज का डिटेल चेक कर लो, समझ लो। मेरे को डेटाबेस कहाँ से मिला? ये जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ abcd@12345, ये हाँ किसके द्वारा दे रहा हूँ? दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डोमेन। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की एक ओके करे तो डिवीजन स्लैश सैम होगा। समझ में आया? तो सर मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, सर मैं कनेक्शन काट देता हूँ सर्वर से, है ना? मैं एक फिगर वाली बता रहा हूँ आपको इमेज, सर्वर से कनेक्शन काट देता हूँ और जो मैं सेव कर रहा हूँ ये, सर्वर से कनेक्शन काट दोगे तो ये सैम कहाँ हाँ, से आएगा? फ्लाइट से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो शो वही एज तो मैं कह रहा एरर हूँ, शो करेगा वही ना? तो कह रहा हूँ, वही तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इविजन का मेंबर ऑफ है। ये इविजन स्लैश सैम नहीं शो कर रहा है। हम्म, कर इसका रहा है। मतलब क्या? पहले डोमेन है उसके बाद यूजर है, तो डोमेन यूजर हुआ ना। तुम देखो ना यहाँ पे जाके, इसको डबल नहीं क्लिक करो, मेंबर ऑफ नहीं, आप में जाओ, समझे सेम नहीं आ रहा सर। है इविजन स्लैश यूजर्स, इविजन स्लैश हाँ evision.com/यूजर, और ये वाला इविजन स्लैश सैम डॉट दस, दोनों तो सेम ही है ना। सेम है। क्योंकि सैम डॉट दस किस ग्रुप का मेंबर ये है? यूजर है। यूजर्स ग्रुप का। evision.com क्या है? डोमेन है, तो इसीलिए आ रहा है ना evision डोमेन डॉट है। सैम। समझ में आया? हाँ सर, मैंने इसको सेव कर दिया, आपने ओके, ओके कर दोगे, अब दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, देन एक क्लिक ऑन सर्वर से अप्लाई, और इससे। देन क्लिक ऑन ओके। मेरे को रिमोट लेना है, कनेक्शन होना ही तो काम है ना, रिमोट एक्सेस लेना ही तो काम है ना। हाँ अब इसको तुम सर्वर के द्वारा कनेक्ट करो ना, कहाँ से जाओगे? तुम रिमोट को ओपन करो नॉर्मली। रिमोट में क्या देंगे? 192.168.1.3। 1.3। 3 का कहाँ पे जाओगे? मोर चॉइसेस में जाओगे। मोर चॉइसेस में यूजर रिफरेंड अकाउंट, यहाँ पे क्या देंगे? सैम डॉट दस। 10। पासवर्ड क्या देंगे? OCT@123, OCT@123। देन भरेगा, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद कहाँ पे लॉगिन होगा? डायरेक्ट पॉपअप। विंडोज 10 में या 7 में लॉगिन होगा? 7 में लॉगिन होगा। क्या बोले? अनदर यूजर करेंटली लॉग ऑन टू दिस कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसमें कौन लॉगिन है? एडमिन लॉगिन, इसीलिए बोल रहे हैं। एडमिन। इफ यू कंटिन्यू, द यूजर गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस कंप्यूटर, मतलब एडमिन डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। यस कर दो। तो देखो क्या बोला, प्लीज वेट फॉर कंप्यूटर वन एडमिनिस्ट्रेटर टू रेस्पॉन्ड। अभी तुम विंडोज 7 में जाओ, यहाँ पे आप पूछ रहे हो तुमको division slash sam dot das wants to connect to this message. Click on OK, disconnected your session immediately. Click in cancel, stay connected. कैंसिल करोगे तो सर्वर रिमोट नहीं ले पाएगा, और ओके कर देंगे तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, सर्वर लॉगिन। देखो लॉगिन हो रहा है।
बोलो कोई डाउट? क्योंकि ये किसके द्वारा लॉगिन, सैम के द्वारा एक्सेस हो रहा है। अब तुम चेक करो हुआ एम आई, ये किसका यूजर है, डिवीजन का। इसका होस्ट नेम क्या है, कंप्यूटर 2। इसका आईपी एड्रेसेस क्या है, 1.2 1.3। 1.3 वर्जन क्या है, विंडोज 7 प्रो पे। Windows 7 Pro. क्लियर। इसका प्रूफ क्या है, तुम देखो ना यहाँ पे, कंट्रोल और डिलीट करो, देखो यहाँ पे आ रहा है, रिमोटली लॉग ऑन रिमोटली फ्रॉम सर्वर 1। दैट इज द प्रूफ Yes, sir. कि दैट विंडोज 7 कनेक्ट रिमोटली। मैं नहीं बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। Yes, sir. मेन मोटिवेशन क्या है, system.cpl, रिमोट में जाओ, जिस यूजर को जिस कंप्यूटर ने परमिशन दिया उस कंप्यूटर में ऐड कर दो, हो गया, खेल करता हूँ। समझ में आया? समझ आ गया। Yes. सर फिजिकल सिस्टम में रिमोट से बाहर कैसे आएंगे? फिजिकल सिस्टम में रिमोट के बाहर कैसे आएंगे मतलब, मैं तो जैसे फिजिकल सिस्टम में प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ। अगर फिजिकल में करना हो तो सर फिजिकल में मतलब नहीं कर वर्चुअल सकते हो पूछ रहे हैं, रिमोट के ऐसे आपने द्वारा। लॉगिन। उसके लिए पब्लिक आईपी जरूरी है, तुम्हारे पास पब्लिक आईपी है तो दे दो, हम कनेक्ट करके दिखा देंगे। बट अभी हम लोग किसके द्वारा कनेक्टेड है, लैन के द्वारा कनेक्टेड। सर्वर से कंप्यूटर 1 कनेक्टेड है, इसीलिए लैन में रिमोट ले पा रहे हैं। सर्वर से कंप्यूटर 2 लैन पे कनेक्टेड है, इसीलिए सर्वर 1 से कंप्यूटर 2 को रिमोट कनेक्ट कर पा रहे। अब लॉग आउट होना है सर, क्लियर। सर्वर 1 में मुझे कंप्यूटर Yes. 2 का लॉग आउट करना है। बोलो कोई डाउट? सर्वर 1 में सर्वर 1 में आना। अभी तुम बोलोगे सर हम विंडोज 10 से विंडोज सर्वर को रिमोट लेंगे, पॉसिबल है? नहीं नहीं, अब नहीं, sir. हटाना है, मुझे हटना है। अच्छा माइनस, ओके ओके, यही है, यही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। नहीं लगता. हाँ, Yes, sir. ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा, मेरे को सर्वर में रिमोट को एनेबल करना है, हाउ, sysdm डॉट cpl, यहाँ पे रिमोट ऑप्शन आ रहा है, रिमोट में जा रहा, रिमोट ऑन है या ऑफ है, ऑफ है, तो इसको Off है, sir. डोंट अलाउ से अलाउ करेंगे। अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे यूजर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एडमिन टू एडमिन द्वारा कनेक्ट है। कहाँ से लॉग इन कर रहा हूँ, एडमिन के द्वारा, पासवर्ड इज 12345, विंडोज 10 से लॉग इन हो रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे इविजन कनेक्टेड है तो इविजन कृष्णा को डिस्कनेक्ट करो, ओके कर दे रहा हूँ, ये डिस्कनेक्टेड हो जाए। अनदर यूजर साइन इन टू, सो योर कनेक्शन वाज लॉस्ट, यस, ये लॉगिन हो रहा है। अब मेरे को रिमोटली कनेक्ट करना है, कैसे रिमोटली कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टली टाइप या रिमोट, REMOT, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आईपी क्या देंगे, 192 192.168.1.1. 1. 1.1. एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम, पासवर्ड इज Administrator. ABCD एट द रेट वन ABC टू at थ्री rate 1234. क्लियर, देन ओके, क्लिक ऑन यस, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा सर्वर में। देखो हुआ लॉगिन, कैसे चेक करोगे, हु एम आई, Who am डिवीजन I? स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, होस्ट नेम क्या है, Him. सर्वर 1, आईपी System एड्रेस क्या server है, 1. 1.1, 1.1. वर्जन क्या है, विंडोज सर्वर, Win क्लियर हुआ, 7 server 2019. समझ में आया? लेकिन विंडोज सर्वर लॉक है, विंडोज सर्वर इसको लॉक करोगे देख नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन कंट्रोल किसने करा है, दैट कंट्रोल बाय Computer. विंडोज सर इसकी कंप्यूटर 1। सारी फाइलें भी देख सकता है हाँ, ये? हाँ एडमिन है ना, अच्छा। एडमिन कंट्रोल करे ना, यूजर कंट्रोल करते तो नहीं होता। अच्छा यूजर, ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे रिमोटली एक यूजर बना लेते हैं, गो टू रन एंड टाइप dsa.ms, बना पाएंगे, यस, क्लिक ऑन Yes, न्यू, sir. क्लिक ऑन यूजर,
व्हाट इज द यूजर नेम, मान लो मैं और एक यूजर बना रहा हूँ, रामदास, राम.दास, पासवर्ड इज OCT NOV@123, NOV@123. User must change password at next logon, password never Password expires. never expire. Click on next, click on Next. finish. किसने बनाया? ये कहाँ से लॉगिन हूँ मैं? Server. एडमिन से लॉगिन हूँ ना, Yes, समझ yes. में आ रहा है? क्योंकि मैंने उधर कौन सा पासवर्ड दिया, विंडोज 10 में, विंडोज 10 में एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम, पासवर्ड इज abcd@123. Clear everyone, please confirm, then I will do next. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Clear. तो तुमको फाइनल ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये मैंने एडमिन से लॉगिन करो, दोबारा फ्रेश फ्रेश लॉगिन करो, देख लो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ। मैं एडमिन से लॉग इन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ से भी सेम एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी मैंने एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ abcd@123, तीनों कंप्यूटर को एडमिन से लॉगिन किया। ये मैं ये किस कंप्यूटर, ये किस यूज करे, कौन यूज करे इसको? कृष्णा यूज कर रहा लोकल है। ये एडमिन। किसको यूज कर रहा है? ये सैम यूज कर रहा है। Computer 2 used by Sam Das, Computer 1 used by Krishna Das, and server 1 is a central server, domain server, RDP server, FTP server. So where I added this, मैंने कहाँ पे यूजर को ऐड किया? रिमोट लिस्ट में ऐड किया। यहाँ पे किस यूजर लिस्टेड है? कृष्णा दास। यहाँ पे कौन यूजर लिस्टेड है? सैम.दास। Canvas. समझ में आया डिफरेंस क्या है? क्योंकि कंप्यूटर 1 को कृष्णा यूज करे, कंप्यूटर 2 को सैम यूज करे। और जब मेरे को रिमोटली लॉग इन करना है, कृष्णा को कंप्यूटर 1 विंडोज 10 ही एक्सेस कर पाएगा, विंडोज 7 नहीं, और विंडोज 7 को सैम ही एक्सेस कर पाएगा, कृष्णा नहीं, रिमोटली। ठीक है, हम चाहे रिमोटली कृष्णा को लॉग इन करेंगे विंडोज 7 में, वो पॉसिबल नहीं जब तक यहाँ पे कृष्णा को ऐड नहीं करो। कृष्णा ऐड हो जाएगा, देन दैट सर्वर एक्सेसिबल द विंडोज 7 विद कृष्णा। ठीक है, कंप्यूटर 1 को यूज कौन करे? कृष्णा। कंप्यूटर 2 को यूज कौन करे? सैम। तो दोनों Yeah. यूजर का रिमोट लिस्ट में दोनों अलग अलग यूजर को ऐड किए। क्लियर? क्लियर। अभी भी कंफ्यूज है तो बोलो, मूक खोलो। मूक नहीं खोलोगे तो कैसे होगा? सर वो तो कल ही निकलेंगे डाउट्स। हम्म। ठीक है, इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। एडमिन में जाना है, system.cpl करना है, रिमोट में जाना है, रिमोट को अलाउ करना है, सिलेक्ट यूजर करना है, ऐड करना है, कृष्णा एंटर करना है, ओके करना है, आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन पासवर्ड देना है, एंटर करना है, ओके अप्लाई करना है। मेरे को रिमोट में जाना है, उसके लिए हम लॉग इन करेंगे। यहाँ पे MSTSC, या तो रिमोट ओपन करो 1.2, कृष्णा डॉट दास कब करेंगे? मोर चॉइस, यूजर रिफर एन अकाउंट, कृष्णा दास, पासवर्ड इज, एंटर द सिलेक्टेड पासवर्ड, ओके, देन यस, देन लॉग ऑन सक्सेसफुल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एनी डाउट प्लीज रिप्लाई। नो सर। Yes. नो सर। No, sir. 25 था, कितना हो गया? 20, मतलब 19। थैंक यू, 19। ओके सर। मिल गया स्क्रीनशॉट सब लोगों को? Yes, sir. Yes, present. हम्म। बोलो, और कोई डाउट? Doubt तो नहीं लग रहा है सर। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल कल डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, और भी बहुत सारे टॉपिक।
कल 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 2 क्लास होगा 31st एंड 1। एक तारीख हम लोग आउटलुक करेंगे और 31st को बाकी विंडोज ट्रबल शूटिंग, बैकअप, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क क्लीनअप, creating a new drive, syncing a volume, delete the volume, extend volume. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, Thank you, sir. everyone. Okay, good night, sir. Thank you so much, sir. Good night. Good night, sir. Good night, sir. Yes, sir.